Hello friends, welcome back to my channel Science with Shweta #SWS. And yes, I'm back now with my new topic, and my topic is RNA and its types. But before I'll start with my topic, I know summer vacations are going on, so I know every student is chilling right now and enjoying the holidays. So इस enjoyment में थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है, and that's why I'm here with one of my topic, that is RNA and its type. And also one of the student is having doubt in this topic, so that's why I'm having this topic today as a point of discussion. So let's start with the topic without wasting our time. RNA and its types. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये टर्म आई कहाँ से है, RNA. So RNA एक स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, उससे आपको पता चलेगा RNA कहाँ से आया. So DNA is converted into RNA, which is converted into protein or which forms protein. So DNA is forming RNA, RNA is forming protein, and DNA forms RNA by the process of transcription, whereas RNA form protein by the process of translation. This topic is not in class 7th, 8th and 9th. This topic is the topic of class 11th and 12th. And a little bit I think introduction is there in class 10th as well. But the major topic is covered in class 11th and 12th. So it's good if you understand this topic properly. So DNA to RNA, RNA to protein. ये है हमारा, यहाँ से RNA आया. DNA और RNA में यही डिफरेंस आता है मेनली. एक ये कि DNA इज डबल स्ट्रैंडेड, जबकि RNA जो है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो अब हम साथ के साथ डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, and I will tell you some characteristics of RNA as well. So let's discuss that. So RNA के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आ जाता है कि एक तो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि मैं साथ के साथ DNA के बारे में भी बताती जाऊंगी. RNA is single stranded जबकि DNA is double stranded. These are the characteristics. Number 2, pentose sugar जिससे RNA बना है, the composition of RNA, it is made up of a pentose sugar and the name of the sugar is ribose sugar. Okay. And the third thing is RNA, full form of RNA जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, that is ribonucleic acid, जबकि DNA is deoxyribonucleic acid, और जो शुगर DNA में होता है that is deoxyribose. So that's why the name is D. And another point of RNA is it is made up of नाइट्रोजिनस बेस, जो कि इसमें नाइट्रोजिनस जो बेस हैं दे आर A, C, G एंड U, दैट इज एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर ग्वेनिन एंड U फॉर यूरेसिल. और DNA और RNA में एक मेन डिफरेंस ये आता है कि इन प्लेस ऑफ U DNA में होता है आपका T, विच इज कॉल्ड थायमिन. So thymine is there in DNA, जबकि uracil is there in RNA. So these are the points of characteristics points of RNA. Now we'll talk about the types of RNA. और RNA का मेन काम क्या है? RNA major function of RNA is protein synthesis. It helps in protein synthesis, and RNA is present throughout the cell. RNA is formed inside the nucleus, and then it goes inside the cytoplasm and reaches to the all cell organelles. So RNA is present throughout the body, all the body parts. Okay. Now we have types of RNA. Types of RNA में we have 3 types. Number 1, messenger RNA. Number 2, transfer RNA. Number 3, ribosomal RNA. मैं अब फुल फॉर्म लिखूंगी इसकी, mRNA, which is messenger RNA. This is number 1. Let's discuss number 1. Messenger RNA. Messenger, as per the name indicates, message carry करना. So messenger RNA का major function है it carry information. कहाँ से? It carry information from DNA टू कहाँ पे? राइबोसोम. कहाँ पे लेके जा रहा है? राइबोसोम. फॉर किस काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस. मैंने ये क्या कहा? लेट मी एक्सप्लेन दिस. प्रोटीन सिंथेसिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ RNA.
कहाँ पे होती है प्रोटीन सिंथेसिस? इट इज द प्लेस, द साइट वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इज राइबोसोम. जैसे पढ़ने के लिए आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल इज दैट प्लेस वेयर यू ऑल स्टडी. द सेम वे प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम. And the third type of RNA is found in ribosome. We will discuss it later in this video only. Here, messenger RNA, it is carrying information. Information for protein synthesis. Protein synthesis बनाने के लिए जो जो जानकारी चाहिए, जो जो काम चीजें चाहिए, that information is carried कहाँ से? From DNA to ribosome. That is clear. और क्यों DNA ही क्यों? क्योंकि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन याद हो तो वो यही थी ना, DNA से आरएनए जा रहा था, तो वो जो पहला आरएनए बनता है दैट इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए. ठीक है. अब आता है कि इट इज कैरिंग इन्फॉर्मेशन इज विच फॉर्म. मैंने कह तो दिया इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, बट इन्फॉर्मेशन जा कैसे रही है? सो इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोडोन. और ये कोडोन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. और ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं एक एमाइनो एसिड. अब यहां से आपके पास 2 न्यू टर्म आई, एक तो व्हाट इज एमाइनो एसिड और व्हाट इज कोडोन. सो 1 कोडोन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 एमाइनो एसिड. आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स. अब ये एमाइनो एसिड क्या है? एक्चुअली जो प्रोटीन होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एमाइनो एसिड. ये पता होना बहुत जरूरी है. ये रोल है एमाइनो एसिड का. एक एमाइनो एसिड, इसके साथ एक और जुड़ गया, 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 एंड दिस इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन चेन. सो एमाइनो एसिड्स एक के साथ जब ज्वाइन होते हैं दे फॉर्म प्रोटीन, एंड दैट इज इक्वल टू 1 एमाइनो एसिड इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स. अब एक एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड इट. आपको क्वेश्चन आ सकता है जस्ट इन 1 मार्क, नॉट इन अ मेजर पोर्शन, कि अगर कोई प्रोटीन है, इफ इट इज मेड अप ऑफ 100 अमाइनो एसिड्स, ओके, सो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? सो पहली बात तो 100 अमाइनो एसिड है, तो मैंने बोला था 1 कोडोन इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स. यही बोला मैंने. यानी कि 1 अमाइनो एसिड है, सॉरी 100 अमाइनो एसिड है, तो कोडोन्स भी कितने हो गए? 100. लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए? 3 into 100. So it comes out to be 300. So 300 nucleotide bases are required for 100 amino acids, क्योंकि एक अमाइनो एसिड पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं. ये हो गया पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेंजर आरएनए. नाउ कम टू द सेकंड टाइप. सेकंड टाइप है आपकी ट्रांसफर आरएनए. एज पर द नेम इंडिकेट्स, ट्रांसफर आरएनए. टी इज फॉर ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड चाहिए. तो इट इज बेसिकली पिकिंग अप द अमाइनो एसिड. यही इसका फंक्शन है. इट इज पिकिंग अप द अमाइनो एसिड एंड अरेंजिंग देम इन पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉली मीन्स मैनी, और पेप्टाइड है होता है एक अमाइनो एसिड का जो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो ये बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और क्योंकि अगर एक बॉन्ड है तो पेप्टाइड बोलोगे, अगर बहुत सारे बॉन्ड है तो इट इज पॉलीपेप्टाइड. सो व्हाट tRNA is doing, it is picking up the amino acid and arranging them in a polypeptide chain. और किस पे? on messenger RNA. ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा? ये डिसाइड करता है आपका मैसेंजर आरएनए. और लेके कौन आता है? दैट इज ट्रांसफर आरएनए. तो ट्रांसफर आरएनए सिर्फ वो काम कर रहा है जो मैसेंजर आरएनए बोल रहा है, क्योंकि करना किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर. अभी व्हेन आई एक्सप्लेन यू विद डायग्रामेटिकली, दैट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, क्लियर टू यू, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसफर आरएनए. हाँ, एक और बात मैंने बोला, ट्रांसफर आरएनए का काम है, इट इज कैरिंग अमाइनो एसिड. अगर मान लो ये मेरा टीआरएनए है, दिस इज माय ट्रांसफर आरएनए, तो इस तरह से वो अपने साथ एक क्या लेके आ रहा है? अमाइनो एसिड. ये मेरा अमाइनो एसिड है. अब ये अमाइनो एसिड जो लेके आ रहा है वो मान लो एग्जांपल है ल्यूसिन, LUC, ल्यूसिन. तो दिस ट्रांसफर आरएनए इज ओनली कैरिंग ल्यूसिन.
ये इसके अलावा और कोई टीआरएनए नहीं लेके आएगा, और कोई टीआरएनए और कोई अमाइनो एसिड नहीं लेके आएगा ये वाला टीआरएनए। इट इज ओनली कैरिंग ल्यूसिन। इफ इन अ प्रोटीन चेन, अगर मान लो कोई 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन चेन और उसमें कुछ 20-30 ल्यूसिन लगे हैं, वो 20-30 ल्यूसिन ये टीआरएनए लेके आएगा। लेकिन उसके अलावा कोई और सेल लगा हुआ है, कोई और अमाइनो एसिड लगा है, दैट विल नॉट बी कैरिड बाय दिस टीआरएनए। सो दे आर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए इज अमाइनो एसिड स्पेसिफिक इन नेचर। जो एक टीआरएनए है वो एक ही अमाइनो एसिड अपना लेकर आएगा। इट विल कैरी ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीआरएनए। एंड अदर थिंग अबाउट ट्रांसफर आरएनए इज दैट कि टोटल हमारे पास कुछ 45 ट्रांसफर आरएनए होते हैं, जिसमें से 20 to 25 ट्रांसफर आरएनए जो हैं दैट वी यूज। ओके। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने बोला था कि मैसेंजर आरएनए में होते हैं कोडोन। इस तरह से 3-3 के सेट के क्या होते हैं, कोडोन, राइट, 3 न्यूक्लियोटाइड के। जबकि टीआरएनए में होते हैं एंटी कोडोन, इसको बोलते हैं एंटी कोडोन। ये है एमआरएनए, दिस इज टीआरएनए। और नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज योर कोडोन एंड दिस इज एंटी कोडोन, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, और इसीलिए इनकी फिटिंग और बाइंडिंग अच्छे से होती है। सो जब टीआरएनए आता है तो वो कोडोन जो है अपने आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टीआरएनए पे जो एंटी कोडोन है वो किसके साथ मैच हो रहे हैं, एंड दिस वे दे फिट प्रॉपर्ली। हो सकता है इस पोजीशन पे तो यहाँ पे आके लग गया, हो सकता है इस पोजीशन पे तो यहाँ पे आके लग गया। सो दैट्स व्हाई आई सेड ना कि इट इज पिकिंग अप द अमाइनो एसिड एंड अरेंजिंग देम इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन मैसेंजर आरएनए। इट इज जस्ट पिकिंग अप द थिंग। This is about transfer RNA. Now come to the third type, that is ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Short form is rRNA. ये आपका एक राइबोसोम है। This is your cell organelle that you know. Cell organelle, जैसे आपके पास what is the name, राइबोसोम, right? जैसे आपके पास गोल्जी बॉडीज होती हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल है, ऐसी वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। इनसाइड राइबोसोम योर राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट, सो इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम। एंड व्हाट राइबोसोम इज डूइंग, इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जगह प्रोवाइड कर रहा है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेजर पार्ट ऑफ आरएनए is covered by rRNA. Major part of RNA is covered by ribosomal RNA. तकरीबन 80%, 70 to 80%। और ये जगह को प्रोवाइड कर रहा है। अगर स्कूल नहीं होगा तो आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, राइट? तो वो स्कूल इज द प्लेस ना वेयर यू पीपल आर स्टडिंग, वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। द सेम वे प्रोटीन synthesis is taking place in or on the ribosome which contain rRNA. Now I'll explain you this whole process diagrammatically that how it is taking place. सबसे पहले हमारे पास आया न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमें पता है what is present, DNA. We know DNA is present inside the nucleus. It undergo transcription process and form single-stranded RNA that we know by the process of transcription, right? Transcription. This RNA, when it comes out of nucleus in the cytoplasm, इट इज हैविंग कोडोन्स। इसके ऊपर कोडोन्स लगे हुए हैं 3-3 के सेट में। इट कैन बी एनी नंबर, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, कितना भी हो सकता है। एंड दिस आरएनए इज योर मैसेंजर आरएनए राइट नाउ, ठीक? सो व्हेन इट इज कमिंग आउट, इट इज द मैसेंजर आरएनए, द लॉन्गेस्ट स्ट्रैंड वी आर हैविंग। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरा पड़ा है राइबोसोम, जिसके अंदर मेरा है rRNA। तो क्या होगा, दिस इज द साइट। तो ये मैसेंजर आरएनए जाके जुड़ जाएगा आपके राइबोसोम के ऊपर। मैंने इस तरह से इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो दिस इज माय मैसेंजर आरएनए। अगर आपको इसका फंक्शन याद हो तो मैंने क्या लिखा था, इट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कैरिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। अब यहां कहीं ऊपर से मैं लेके आ रही हूं अपना ट्रांसफर आरएनए विच इज हैविंग अमाइनो एसिड्स, खूब सारे ट्रांसफर आरएनए एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, क्योंकि एक के एक टीआरएनए इज कैरिंग वन राइबोसोम, वन अमाइनो एसिड। ओके, अब इन पे लगे एंटीकोडोन, तो अपने अपने हिसाब से एंटीकोडोन जो है जुड़ते जाएंगे। सपोज जो फर्स्ट वाला है वो इससे मैच कर रहा है, वो कोडोन की एंटीकोडोन के साथ जो बॉन्डिंग है वो इजीली अंडरस्टैंड, मतलब इजीली फॉर्म हो जाती है। दे हैव सीक्वेंस बिटवीन देम। नाउ दिस इज द
वन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए विच इज ज्वाइनिंग. सो यही आपको बोला था कि इट इज पिकिंग अप द अमाइनो एसिड. tRNA is picking up the amino acid on the messenger RNA. अब इसी तरह से एक और tRNA आया पीछे से और वो भी एक ले आया. तो जब tRNA आके जुड़ता है मैसेंजर RNA पे, द बॉन्ड बिटवीन tRNA एंड अमाइनो एसिड ब्रेक्स. ये वाला बॉन्ड जो है दोनों के बीच में ये टूट रहा है एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड द सेकंड अमाइनो एसिड एंड दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, फिर इसी तरह से मैं एक और बना देती हूँ. इसी तरह से एक और tRNA आ गया, बॉन्ड मैंने तोड़ दिया इसके बीच में, राइट. और फिर मैंने इसको एक और बॉन्ड से जोड़ दिया. अगर आप नीचे देखो तो ये बॉन्ड टूटता जा रहा है इस तरह से दोनों के बीच में एंड यू आर गेटिंग दिस चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड विच इज व्हाट, प्रोटीन. यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन. एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ what? This is all about the function of transfer RNA, ribosomal RNA and messenger RNA. In layman's language you can easily understand it कि suppose कोई फैक्ट्री है जो कि कोई XYZ प्रोडक्ट बना रही है, तो दैट फैक्ट्री जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट फैक्ट्री इज योर rRNA, राइबोसोम. ठीक है, वो इट कैरीज राइबोसोमल RNA. वो जगह जहाँ पे प्रोटीन बनता है दैट इज rRNA, जस्ट लाइक दैट फैक्ट्री. प्रोडक्ट बनना कैसे है, क्या लागत लगनी है, कितने वर्कर लगने हैं, कौन सी चीज कहाँ यूज होनी है, दैट ऑल द थिंग्स आर डिजाइंड बाय मैनेजर. वो सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, मैनेजर. जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑन द राइबोसोम्स. ओके, लेकिन खुद से नहीं काम करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन. उसको बताना है ये ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए. प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या लगते हैं, वर्कर्स, जो कि प्रोडक्ट का सामान लेकर आ रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तब वो प्रोडक्ट बना. और यहाँ पे वो वर्कर्स का काम कौन कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए. दे आर पिकिंग अप अमाइनो एसिड्स, दे आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, दे आर मेकिंग द बॉन्ड, दे आर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड चेन. और वो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के बना रहे हैं प्रोटीन थ्रू आउट द आरएनए. ओके, सो वर्कर्स आर जस्ट लाइक tRNA, manager is just like messenger RNA, and factory is your ribosomal RNA. That's all about RNA and its types. Thank you so much.